we will start with our next topic, that is hunger, hardship and popular revolt. Okay, as the topic suggests, okay, as it is indicating hunger, hardships and popular revolt. All these three terms are very tragedy terms. Okay, you can see hunger means lack of food. You see hardships means the problem, the peoples are facing problem in the society, and the popular revolt means when they are not getting the subsistence thing and they are on the roads and they are indulged in a revolt against the government. So why this situation occurs, we will explain in this topic. The first is that 1830s was the year which was facing great economic hardships. Great economic hardships. Why this year was facing great economic hardship? Because the rise of the population. Okay, because of the rise of the population. Rise of the population, and the city countries were not ready to cope up this situation. They are having the grains, they are having the jobs or employment in respective to their earlier census, and they hadn't advanced with the new census. जो नई जनसंख्या थी या जो एम्प्लॉयमेंट जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई उसको लेकर के इन कोई प्लानिंग इनकी नहीं थी. अब उससे हुआ क्या? When the population increases, तो what happens? Seekers of jobs, then employment means जो jobs के लिए लोग भटक रहे थे वो ज्यादा थे, means their number is more. ठीक, जॉब के लिए लोग ज्यादा थे लेकिन एम्प्लॉयमेंट का नंबर क्या था? इट वॉज वेरी लेस, बिकॉज देयर वॉज नो चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर. तो द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वॉज सेम एंड द पॉपुलेशन रोज अप. Automatically what will happen? The job seekers of the job will be more in comparison to the employment. Understood? तो obvious सी बात है. Next, the more we can say the most problematic thing which happened at that time was that the people in the rural areas, they are facing a stiff competition from the large landowners and the aristocrats. Large landowners and the aristocrats, why? Because they are capturing most of the land and the very less land is given to the poor people, or you can say that the third state people. Hence they are unable to meet with their demands, and with the increased population that small piece of land is unable to satisfy their need. वो जो छोटा सा एक जमीन का टुकड़ा है 2 hectares or 3 hectares of land, उनके घर की पॉपुलेशन भी बढ़ी तो उससे क्या हुआ? नाउ दे आर अनेबल टू फीड. उसको उतने में नहीं चल पा रहा था काम, तो उन्होंने क्या किया? देयर फैमिली मेंबर्स ऑफ रूरल एरिया फैमिलीज, दे माइग्रेटेड टुवर्ड्स द सिटीज. द प्रॉब्लम इज सेम इन द सिटीज ऑल्सो. अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर. And the situation become worse when the rural area peoples also entered into the cities. Means now the slums developed. आप लोगों ने स्लम सुना होगा, धारावी, बोरेवली, ये जो मुंबई में इस वक्त कोरोना अगर सबसे ज्यादा देखे तो उन्हीं एरियाज में फैला हुआ है. तो आपने ये जो स्लम सुना होगा, झोपड़पट्टी के एरियाज है ना, छोटे छोटे कमरों में 10-10, 12-12 लोग रह रहे हैं. तो उसी तरीके से ये सिटीज में स्लम्स बनने स्टार्ट हो गए. तो एक चीज हमेशा याद रखिए, नेवर पैनिक विद द इंडियन सिचुएशन कि इंडिया हमारा ऐसा है कि यहीं पर स्लम्स हैं. सबका टाइम आता है. यूरोप में एक टाइम था जब वहां पर भी मुंबई से ज्यादा खराब स्लम्स थे, लेकिन आज वो डेवलप हो गए. इंडिया विल ऑल्सो डेवलप. ठीक है, तो ये चीज आप समझिए. नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर सिचुएशंस रूरल एरियाज में और सिटीज में प्रॉब्लमेटिक क्यों थी? क्योंकि कुछ फैक्टर्स ऐसे थे जो निगेटिव फैक्टर्स थे उस टाइम के. उनमें से पहला फैक्टर था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दैट इज एरिस्टोक्रेसी. दे आर पावरफुल पीपल बिकॉज दे आर हैविंग लैंड एंड मनी, बोथ थिंग्स. दे आर कैप्चरिंग द मोस्ट ऑफ द लैंड of that society and the wealth of that society. ठीक,
and then the rural persons they are under the feudal dues means कर्जे में थे, ओके। और फ्यूडल आप सभी को पता है, मैंने लास्ट ईयर भी आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा होगा फ्यूडल लॉर्ड्स। तो ये फ्यूडल सिस्टम का जो लॉर्ड्स थे उनके ड्यूज से ये लोग दबे हुए थे, कर्ज तले दबे हुए। जैसे अपने यहाँ अगर आप जमींदार मान लीजिए तो उसी तरीके से सामंत जमींदार जो चीजें हैं उसी तरीके से ये फ्यूडल ड्यूज। तो लोग जो थे दे आर अनेबल टू सेटल देमसेल्फ इन द रूरल एरियाज एंड ड्यू टू द हैवी डेप्ट वो वहां से भागे और सिटीज की तरफ आकर के एडजस्ट हुए। उसी टाइम पर एक और चीज वो बोलते हैं ना, जब सिचुएशंस वर्स्ट होती हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो उस टाइम पर हमारे अगेंस्ट में जाने लगती हैं। तो एक और चीज उसी वक्त क्या खराब हुई, बैड हार्वेस्ट, यानी कि फसल भी उसी वक्त क्या हो गई, खराब हो गई। और फसल खराब होने से क्या हुआ, ऑब्वियस सी बात है सप्लाई कैसी हो गई, लेस। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने से डिमांड कैसी थी, हाई डिमांड हो गई, सप्लाई लेस हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस ऑफ द गुड विल रीच टू इट्स जेनिथ। वो कहां पहुंच गए, कॉमन पीपल के और यू कैन से थर्ड स्टेट के पीपल के ये आउट ऑफ रीच हो गए। पीपल आर अनेबल टू फीड देयर फैमिलीज 2 टाइम्स, 2 टाइम के खाने के लिए भी उनको मुश्किल होने लगी। तो इसी वजह से यहाँ पर करप्शन बढ़ने लगा, रॉबरी बढ़ने लगी, आपस में राइट्स होने लगे, आपस में लड़ने लगे, झगड़े बढ़ने लगे। तो ये सिचुएशन अगर हम देखें 1830s to 1848 द सिचुएशन वाज वेरी वेरी क्रिटिकल इन द यूरोपियन कंट्रीज। यहाँ पर कुछ हमारे फैक्ट्स हैं। एक 3 नंबर में आपका अक्सर वैसे ये भी पूछा जाता है, लेकिन 3 नंबर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है वो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द वीवर्स इन सिलेसिया। ईयर याद रखिएगा 1845। इनकी प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम वाज सेम, ओके, प्रॉब्लम वाज सेम। यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे इन्होंने क्या किया था, ये जो कॉटन के फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, यहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे, कॉन्ट्रैक्टर क्या करते थे, चीप रेट में लोगों को रॉ मटेरियल देते थे और उनसे फिनिश प्रोडक्ट्स की बात करते थे। लेकिन द सिचुएशन गेट वर्सन व्हेन दीज कॉन्ट्रैक्टर्स ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी मीन्स कि उन्होंने मौके का फायदा उठाया, क्योंकि उनको ये पता था कि काम करने वाले लोग बाहर ज्यादा खड़े हैं और हमें कम चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इनके बीच में हम कर सकते हैं, वो बोलते हैं ना कि आप कितने में काम करेंगे हमारे पास, ठीक है, आप 20 रुपीज में पर डे काम करेंगे कि 50 रुपीज में, कोई कह रहा हम 50 में करेंगे, कोई कह रहा 40 में। तो जो सबसे चीप पर्सन उन्हें मिला कि 20 का परसेंट मिल गया तो उसको अपने पास रख लिया। लेकिन जो 20 में परसेंट टाइम बीइंग के लिए आ गया, बाद में जब वो काम पे आया तो उसने देखा कि वो 12 आवर्स 16 आवर्स काम कर रहा आउट ऑफ 24 आवर्स, देन द सिचुएशन, तो उसको भी लगने लगा दैट आई एम डूइंग दैट मच ऑफ वर्क एंड आई एम गेटिंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी। तो दे ऑल टुगेदर स्टूड अप अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स एंड वन डे देयर वो बोलते हैं ना पेशेंस वाज ओवर एंड दे कम टू द मैसन मीन्स वो एक छोटा सा महल टाइप का जहां पर आपके मैनर्स रहते हैं, किंग के नोबल्स ये सब। तो वहां पर पहुंचे, वहां कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिला, दे आस्क्ड फॉर देयर डिमांड, कॉन्ट्रैक्टर वाज इनसाइड बट ही डिडंट रिस्पॉन्ड टू देम। तो उन्होंने क्या किया, उसके मैनर को तोड़ना स्टार्ट कर दिया और वहां से उसके जो फैमिली मेंबर्स थे और भी लोग थे वो लोग किसी तरह से जान बचा करके वहां से भागे। तो ये रिवोल्ट था और ये रिवोल्ट क्या था, लेकिन बाद में फिर 24 आवर्स में ऐसा बोला जाता है दैट द मैनर कम बैक इन 24 आवर्स, और वो आर्मी के साथ आया और जो भी वीवर्स थे उनमें से 10 वीवर्स को वहीं पर गोली मार दिया गया और बाकी वीवर्स भाग गए, ठीक है। तो ये तो सप्रेशन हो गया। लेकिन अगर हम उनका ये पूरी तरीके से अगर देखें तो ह्यूमिलिएशन हो रहा था उस वक्त वीवर्स का, कॉन्ट्रैक्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये जितने भी एरिस्टोक्रेट्स थे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे, ये सभी क्या कर रहे थे, दे वर टोटली ह्यूमिलिएटिंग एंड टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एंड द कॉमन पीपल वाज ऑन द रोड्स एंड देयर वाज नोबडी टू लुक आफ्टर देम। Same one incident took place in 1848 due to the increasing revolts in the society. Louis Phillipe has just came an intuition that someday or one day he can be killed or he can be betrayed. तो वो वहां से क्या किया, he forced to flee, वो वहां से भाग गया,
ठीक है, यानी कि किंग, अगर हम बात करें, एक किंग इस सिचुएशन से घबरा करके वहां से भाग गया। उसके बाद एक नेशनल रिपब्लिक वाज फॉर्म्ड, और इस नेशनल रिपब्लिक ने क्या किया, दे आस्क्ड फॉर द, इसमें दो चीजें मांगी गई, एक तो एम्प्लॉयमेंट की बात की गई और एक बात की गई कि 21 ईयर्स के जितने भी लोग हैं सभी को क्या दिया जाए, राइट टू वोट। सभी को क्या दिया जाए, राइट टू वोट। 21 ईयर्स के जितने भी लोग हैं सभी को राइट टू वोट दिया जाए। तो ये पूरा आपका टॉपिक था हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो प्रॉब्लम ऑफ वीवर्स इन सिलेशिया है, और एक जो 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज लुइस फिलिप व्हेन ही फ्ली अवे, फोर्स्ड टू फ्ली। तो द ईयर वाज 1848 when the national republic was formed, it was year 1848. So this is with this topic we will come up with our next topic. So